Hello students, this is the next lecture of Management Information System. In the previous lecture, we discussed about the types of information systems. We discussed about TPS, Transaction Processing System, Decision Support System, and we talked about Executive Support System. There are various other support systems also, but that we are going to cover in the next unit and that too in detail. In this, we need to understand what is the decision making process, how it is, what are the various steps of a decision making process. So we will proceed with this. So this is the decision making process. This was given by Herbert Simon. So there are three steps. First one is intelligence. Second one is design. The third one is choice. You can say IDC, intelligence, design, and choice. So first of all, it starts with intelligence. That means the collection of data. You have to identify the problems and you have to collect data regarding that problem. Intelligence is all about finding the issues, finding the problems. You will reach to a particular decision when you know that what is the problem. So first step is to find out the problem. Once you have defined what is the problem, then you have to collect the data. So in intelligence, there are two things that is to be done. First one is identification of problem and collection of raw data. Once this step has been done, then we will move to the next step, that is called designing. Designing means you have data with you and the problem with you. Now you have to find out the alternatives and you have to analyze the various alternatives that are available with you, and you have to identify the best alternative on the basis of cost benefit analysis, and you have to test the feasibility also. You have to test whether this particular alternative is feasible for the problem that has been identified, and that whether that solution will work with the organization in which you are working. So in intelligence step, we discussed about the problem identification plus the raw data collection. Now in the second step, we talked about evaluation of alternatives plus testing feasibility of the feasibility means you should check whether it is whether you can go for that particular solution or not. With the organizational resources and organizational constraints, can you proceed with that particular alternative? So the second step is about evaluation of alternative plus testing the feasibility. Now coming to the third step, that is choice. Now you have evaluated the various alternatives and you have ranked them according to the feasibility and the best choice criteria. Now the choice means you have to make a final decision about the problem. Final decision you have to take about which solution is best according to your problem. Now, there are two types of decision-making systems. There are one is open decision-making system. Another one is closed decision-making system. So open means you are not aware of all the alternatives and their outcomes. Means you are not aware. Suppose there is a problem, but you are not defined with like, okay, these are the set of alternatives available for this particular problem. Open means you are not aware what are the various solutions available and what are their outcomes. So if you don't know that what are the various alternatives, how can you rank them? So there is no specific method or rule for defining their ranking of the problem. Differentiate to decide between the goal and objectives. Manager, what happens here is manager makes the best decisions, makes the decision or takes that particular decision which meets the aspiration of the managers. As you don't know that which particular alternative is best, because there is no method for ranking them, as number of alternatives can be more than that you have thought. जो आपने सोचे हैं उससे ज्यादा alternatives available हो सकते हैं. So आपको number of alternatives नहीं पता है. Plus you don't know the method of ranking them. So what is the alternative here is the manager decides the solution on the basis of his
एस्पिरेशंस और डिजायर्स, जो उसके एस्पिरेशन और डिजायर से मैच करती है वो डिसीजन मैनेजर यहाँ लेता है. So in this, it is very difficult to decide the goal and objective because we don't know which particular alternative or is going to we take for the particular problem. So it is very difficult to decide which the goals and objectives. If we talk about the closed one, here we know that set of alternatives are there and what will be the outcome when we choose this particular alternative. तो alternatives भी हैं और इस alternative को choose करने के बाद क्या outcome आएगा, क्या result आएगा, that is also available with us, means closed. आपको सब कुछ डिफाइंड है, आपको ऑल्टरनेटिव्स भी डिफाइंड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिफाइंड है, आपके पास सेट ऑफ रूल्स भी अवेलेबल है, सेट ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं जो आपको उन ऑल्टरनेटिव्स को रैंकिंग में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे पास ओपन में नहीं था. नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं थे, रैंकिंग मेथड अवेलेबल नहीं था, हम गोल्स डिसाइड नहीं कर सकते थे. जो हम मैनेजर्स का जो बेस्ट डिसीजन होता था दैट विल बी बेस्ड ऑन हिज और हर एस्पिरेशंस. पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है, उसके आउटकम भी अवेलेबल है, मेथड भी अवेलेबल है टू रैंक द ऑल्टरनेटिव्स, और तो हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेस्ट है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिसीजंस किस तरह के हो सकते हैं, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड. जैसे हमने पहले पढ़ा उसी का एक दूसरे वे में हम उसको देखें तो प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड. ठीक है, प्रोग्राम्ड मींस डिसीजंस जो है हमारे दैट आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स और मेथड्स, जो कि हमने वहां क्लोज्ड में पढ़ा है. वेयर एज इन नॉन प्रोग्राम डिसीजन कांट बी मेड ऑन यूजिंग अ रूल और मॉडल. तो हमारे पास यहाँ कोई रूल्स और मेथड नहीं है. ठीक है, प्रोग्राम में हमारे पास डिसीजन जो है हम किसी रूल, किसी मेथड, कोई एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम डिसीजंस ले रहे हैं. पर नॉन प्रोग्राम में कोई मेथड, कोई रूल, कोई मॉडल काम नहीं करता है, जस्ट मेड ऑन सम अदर क्राइटेरिया. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम. प्रोग्राम मतलब सब कुछ फिक्स है, सेट ऑफ रूल्स है, उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन होगा. नॉन प्रोग्राम मतलब कोई रूल और मेथड नहीं है. नाउ हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसीजंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कमिंग अंडर डिफरेंट नेम्स. दिस यू हैव टू लर्न. लाइक डिसीजंस हमारे क्या होते हैं, 3 लेवल पे होते हैं. सबसे पहले होता है ऑपरेशनल लेवल, देन मिडिल लेवल, देन द टॉप लेवल. तो जो ऑपरेशन लेवल है वो हमारा सबसे नीचे का लेवल है, जो बिल्कुल लोअर नीचे लेवल है बिल्कुल. देन उसके ऊपर हायर अथॉरिटीज, देन द टॉप अथॉरिटीज. जैसा कि हमने वी स्टडीड इन द लेवल ऑफ नीड्स. जैसे जैसे हमारे लेवल्स ऊपर मूव करते हैं उसी तरह के हमारे डिसीजन मेकिंग भी डिफरेंट होते हैं, उसी तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट नीड्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल की. यहाँ पर डिसीजंस क्या होते हैं, देयर इज अ सर्टेनिटी. एक सर्टेनिटी होती है हमारे पास कि क्या डिसीजंस लिया जाएगा. प्री डिटरमाइंड ऑल्टरनेटिव डिसीजंस होते हैं. ये होता है कि इफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल अराइज तो क्या अल्टरनेटिव हमें लेना है, ये पहले से डिफाइंड होता है. एंड वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द इन्वायरमेंट एंड द इवेंट्स. हमें ये पता होता है क्योंकि बहुत बेसिक लेवल की होती है ये जो डिसीजन मेकिंग है, बहुत डे टू डे लाइफ में होती है. सो सच टाइप वी हैव अ गुड नॉलेज कि किस तरह का इवेंट होगा, किस तरह का एनवायरनमेंट है. तो ये सब चीजें हमें पहले से पता होती हैं. तो जब पता है तो सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी हमारे पास डिफाइंड है, तो एक सर्टिनिटी बनी होती है, अनसर्टिनिटी नहीं होती है यहाँ पे, मतलब सब कुछ पक्का पक्का होता है. देन वी कम्स टू द मिडिल लेवल, जो कि हमारा लोअर लेवल से अपर है, थोड़ी हायर अथॉरिटी आ गई. अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास फोरकास्टिंग ऑफ इवेंट इज नॉट 100% एक्यूरेट. 100% हमें इन्वायरमेंट के बारे में और इवेंट्स के बारे में वी आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स. वी कांट एक्यूरेटली फोरकास्ट कि हाँ ये चीजें होने वाली हैं इन फ्यूचर. एंड दिस टाइप ऑफ डिसीजंस क्या होते हैं, थोड़े से रिस्की होते हैं कंपेयर टू ऑपरेशनल लेवल, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर व्हाट आर द थिंग दैट आर गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर. सो लिमिटेड स्कोप होता है कि हम ऑल्टरनेटिव डिसीजन के बारे में उसका हमें पता हो. जैसे हमें पहले वाले में था कि प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमें उसमें से एक टिक करना है. बट यहाँ क्या है, हमारे पास जो अल्टरनेटिव डिसीजंस के लिए थोड़ी सी लिमिटेशंस है.
देन कमिंग टू द टॉप लेवल, अब यहाँ क्या है, ये डिसीजन जनरली वी टेक फॉर अ लॉन्ग टर्म, हम जनरली एक लॉन्ग टर्म के लिए ये डिसीजंस लेते हैं. सो सम अनसर्टेनिटी ड्यू टू अनअवेयर अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो यहाँ क्या है, हमें ये नहीं पता कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आगे जब हम लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, आज से 5 साल 10 साल बाद क्या होगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट. जस्ट एक यू कैन टेक गेसेस कि ओके वी आर फॉलोइंग दिस, तो ऐसा हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर. सो सम अनसर्टेनिटी होती है बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम रूल्स चेंज हो गए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्वालिटीज के रूल्स जो चेंज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस चेंज हो गए. सो दीज आर द थिंग्स की जो नियर फ्यूचर में चेंज हो सकती है, एंड वी आर अनसर्टेन अबाउट सच टाइप ऑफ इवेंट्स. और जो भी ऐसी कुछ रूल्स हैं गवर्नमेंट्स के या टेक्नोलॉजिकल, मान लो जैसे अभी कोरोना हो रहा है, किसी को नहीं पता था कि कोरोना होगा तो ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा, सब कुछ ठप हो जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड. जो जनरली हमारी लेबर क्लास है ये सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बट किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था ये सब चीजें. सो जो लॉन्ग टर्म में जो चीजें होती हैं दैट आर जनरली वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट. तो हम बिजनेस ग्रोथ को हम एक आइडिया लेके चलते हैं, बट दीज आर समवट अनसर्टेन. So this is all about the decision making process. Thank you.